Okay. Yes, sir. Okay. Okay. So let us begin our this topic. This is our second lecture where we are learning about the water supply and distribution of water. In previous lecture, we have seen the introductory part, water crisis of. We have seen about the water crisis in our previous lectures. Okay. In this particular lecture, we'll go through the water supply and distribution of water. So again, quickly we'll go with this content. What is in module number one? Like in this, water resource is there, water supply system is there, distribution system of water is there, types of intake structure will be there, and water demand will be there. It completely requires the 3 hours for the completion of this module. Today we are going to take a two topic of this, that is a water resources and a water supply system. Now, from childhood, we are learning about this, about the water resources. I think from class sixth, we are learning about these things. So, water resources are natural resources of water that are potentially useful. Water includes agriculture, industrial, household, recreational, and environmental activities. All living things require water to grow and reproduce. Virtually all these humans use require fresh water. हमें हमारी कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए हमें फ्रेश वाटर का ही रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है. बट फ्रेश वाटर कहाँ पे ज्यादा यूज होगा? जहाँ पे हमको पर्सनली उसे यूज करना है. पर्सनली यूज करना है यानी कि हमको ड्रिंकिंग पर्पज से करना है, बाथिंग पर्पज से करना है, या आपको फिर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स करना है, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स करना है, या समहाउ कहीं आपके मशीनरीज को आपको वॉश करना है. So you will require a fresh water for that. Okay. So for that, only 2.5% of water on Earth is a fresh water. Yeah, this is very severe thing which we have to understand, since the complete globe is having water of 97%. But later on we'll cover this topic in the slide. All these are there now. So only 2.5% of water on Earth is a fresh water, and over 2/3 of this is frozen in glaciers and polar ice caps. Now it is estimated from the last so many decades or so many eras that it is estimated that 70% of the worldwide water used for the irrigation in agriculture purpose only. 70% आपका जो water है वह हम irrigation या agriculture purpose में ही use कर रहे हैं. Then water demand already exceed supply in many parts of the world. हमारा जो भी वाटर डिमांड है हमने सारे लिमिट्स को पार कर चुके हैं, हमने अपनी लिमिट्स को बढ़ा दिया है. हमारा वाटर कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है. And many more areas are expected to be experience this imbalance in the near future. तो अभी इतना वाटर का कंजम्पशन हमने इतना ज्यादा कर लिया है कि फ्यूचर में हमें वाटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, that is also a big issue. Then climate change will have a significant impact on our water resources around the world because of the close connection between the climate and the hydrologic cycles. Yes, climate का अगर changes हुआ, हमारा climate अगर changes हुआ, हमारा weather अगर हमारा changes हुआ, तो आपका water जो resources, आपका जो water requirement है, आपका जो water consumption, ये सब आपका सब change हो जाएगा. And it will be affect your hydrological cycle as well. So yes, climate plays a vital role in hydrological cycle. Due to expanding human population, competition for water is growing such that many of the world major aquifers are becoming depleted. Now, many pollutants threaten water supplies. Yes, this is very important that कि हमारे पास में जो water आ रहा है, हमारे पास में जहां से भी water आ रहा है, तो whether it is a contaminated, whether it is a polluted by whom, with the pollutants, so that we need to be see here. But the most widespread, especially in the underdeveloped countries, is the discharge of a raw sewage into a natural water. ठीक है, ट्रीट करने की बात एक है, मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, जहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत हो गया है, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो गया है, सो व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो वेस्ट हमारा है,
जो भी हमारा सीवेज वेस्ट निकल रहा है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू डंप इट इन द अवर फ्रेश वाटर, ओके, सो दैट वो उसको न्यूट्रलाइज कर ले. सो दैट इज ऑल्सो अ बिग इशू in current situation, in current era. So what are the factors which affect the water resources? So these includes, number one, population growth, particularly in water short regions. Early in my classes as well, I told you this. Pollution is directly proportional to the population. If population increases, per capita demand also increases. If per capita demand increases, then yes, the consumption also increases, as well as the waste also increases, because whatever the water will consume, that is near about 135 LPCT. LPCT is liter per capita demand, and you consider as a 80% of will be a waste. Whatever you are taking 135 LPCT, उसका 80% आप consider कीजिए, तो आपका वो waste हो जाएगा. So एवरीथिंग वी आर कैलकुलेटेड पर कैपिटा. सो आप ये ध्यान में रखिए कि आपका अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो आपका वाटर कंजप्शन बढ़ेगा. वाटर कंजप्शन बढ़ेगा तो आपका वेस्ट वाटर भी आपका बढ़ेगा. ओके, सो ये एक लिंक है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच एंड अनदर. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम कंट्री साइड टू टाउन एंड सिटीज. माइग्रेशन बहुत ज्यादा तरीके से हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एजुकेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा नीड बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं. हम अपने आप को माइग्रेट कर रहे हैं, एक नए प्लेस में हम अपने आप को माइग्रेट करते हैं. सपोज करो कि कोई मतलब गांव से कोई बंदा है, अगर उसको एजुकेशन अच्छा हो गया तो ही नीड अ गुड सैलरी जॉब, सो ही विल टर्न अप टू द अर्बनाइजेशन, मतलब सिटी की तरफ में या बड़े टाउन की तरफ में वो शिफ्ट होने की कोशिश करेगा. तो ये जो मूवमेंट है, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर द वाटर रिसोर्स. देन डिमांड फॉर अ ग्रेटर फूड सिक्योरिटी एंड अ हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स. यस, डे बाय डे हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देखो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ा लग्जरियसनेस की तरफ में बढ़ते जा रहे हैं. हम ज्यादा लग्जरियस चीजों को मतलब कंज्यूम करेंगे या यूज करेंगे, so of course ज्यादा यूज होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगा. so there are linked to each other. The increased consumption between different users of water resources and pollution from factories, cities and farmland. Yes, consumption everywhere is like ये जो मंत्रा है, pollution is directly proportional to population. ये हमेशा ध्यान रखो, चाहे आपको वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो आपका लैंड पोल्यूशन हो, whatever it may be, वो हर जगह वो काम करता है. Now again we have learned this hydrological cycle in our childhood, where why it is necessary कि हमें ये जरूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि environmental engineering completely deals with your water. तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो इसका है वो आपके वाटर को ही कंसर्न में है. तो हमें ये जानना जरूरी है कि what will come under this, as well as when we say about the environment. तो environment मैंने पहले ही बताया था, the definition of environment is like it is surrounding. Now to whom we are surrounded, तो मतलब हम किससे surrounded हैं, तो हम अपने environment में किससे surrounded है. हमारा environment में आपका lithosphere आएगा, hydrosphere आएगा, biosphere आएगा, and sociology आएगा, and atmosphere आएगा. So we are surrounded with so many spheres, like. तो वन ऑफ द स्पीयर इज हाइड्रोस्फीयर. जब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो बट नेचुरल हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करना चाहिए. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, लाइक फर्स्ट स्टेप इज की इवोपरेशन. नाउ इवोपरेशन ऑफ व्हाट, इवोपरेशन ऑफ वाटर. somehow somewhere it is termed as a evaporation या evotranspiration. ओके, तो ये दो तीन वर्ड्स हैं, दोनों भी चलते हैं. So evaporation from what? From where? Evaporation from ocean, then evaporation from reservoirs, then evaporation from water surface, then evaporation from soil, then transpiration evaporation from the vegetation. सो ये सारा का सारा जो भी मॉइस्चर अवेलेबल है, जो भी वाटर आपका अवेलेबल है H2O फॉर्म में, ये क्या होगा, आपका इवोपरेट होगा.
जैसे ये इवोपरेट होगा तो वो ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट में जाके क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, व्हिच इज नोन एज कंडेंसेशन. Once it is condensation, then that will be cool down, and वो बाद में हो जाता है आपका precipitation. Now you can see precipitation to where? Precipitation to this ocean, again precipitation to lands. ये दो ही जगह में आपका precipitation होगा. फिर धीरे धीरे आप देखिएगा ये जो आपका precipitation हो रहा है, this will be like a surface runoff. देन वाटर टेबल में आ जाएगा, देन कुछ आपका इल्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, देन कुछ आपका ग्राउंड वाटर आउटफ्लो में होके फिर से आपका ओशन में चले जाएगा, देन कुछ और डीप परकोलेशन होगा. ओके, सम वाटर विल बी यूज्ड बाय योर वेजिटेशन एज वेल, देन प्रेसिपिटेशन विल बी ऑन द सरफेस वाटर. सो इट इज लाइक दैट कि इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, देन वो क्या हो जाएगा, आपका परकोलेट हो जाएगा डीप वाटर तक के. ओके, सो दिस इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल which is to be understand, and maybe this may be asked on exam as well. Now we have seen this hydrological cycle. After this, availability of drinking water. If you consider as a total global water as 100%, then you will realize that the ocean is occupying 96.5%. आपके ओशन में ही 96.5% आपका वाटर अवेलेबल है. Now other saline water is 0.9%. Okay, then what is the fresh water concentrate, or what is the percentage of fresh water? So here it is a 2.5%. Now this fresh water can be bifurcated like this. आपको ये fresh water कहाँ मिलेगा? You will get a fresh water from the glacier and ice caps. You will get a fresh water from the groundwater, as well as in the surface or other freshwater sources. So if we talk about the glaciers and ice caps, so it will be 68.7%. ये जो है आपका glacier ले रहा है. Then groundwater occupies 30.1%. Then surface water occupies 1.2%. Can you see this surface water? हमने 2.5% लिया था आपका fresh water. उसमें से अगर उसको मैं 2.5 को भी मैं 100% कंसिडर करूँ फ्रेश वाटर के टर्म्स में, तो आप देखिए ग्लेशियर एंड आइस कैप 68.7 है, ग्राउंड वाटर आपका 30.7 है, और आपका जो सरफेस में वाटर है, सरफेस में वाटर यानी कि आपका जो रिवर में अवेलेबल है, जो आपका लेक्स में अवेलेबल है, जो पॉन्ड्स में अवेलेबल है, मार्शी लैंड्स में अवेलेबल है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो दैट इज ऑक्यूपाइंग बाय ओनली एंड ओनली 1.2%. नाउ ग्राउंड वाटर इज 30.1 जो आपके सरफेस के नीचे में है. ओके, एंड एवरीवन नोज द ग्लेशियर्स, यानी कि जो भी आपका हिमालय जैसे रीजन है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेश वाटर. नाउ जस्ट 1.2% का अगर हम उसको 100% आप कंसिडर करते हैं, सो ग्राउंड आइस permafrost will be a 69.0%. Then lakes will comprises of a 20.9%. Then soil moisture में देखिए आपका 3.8%. उसके बाद में swamp and marshes area will occupy 2.6%. Then rivers will occupy 0.49%. Then living things को देखिए आप 0.26%. और आपके कुछ वाटर जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में भी अवेलेबल है, दैट विल बी 3%. लेकिन ये जो आप बाइफर्गेशन आप देख रहे हो, ये किसका है? दिस इज द बाइफर्गेशन ऑफ 1.2%. इसको हमने जब 100% कंसिडर किया तब ये बाइफर्गेशन है. अब ये 1.2 किसका है? दिस इज द बाइफर्गेशन ऑफ दिस टोटल ग्लोबल वाटर, सॉरी फ्रेश वाटर. और 2.5% को हमने यहाँ पे 100% कंसिडर किया था. एंड सेम हम 2.5% किसका है? ये टोटल वाटर. तो आप देखिए कि हमारे पास में ड्रिंकिंग वाटर के लिए अवेलेबिलिटी क्या है. नाउअडेज बहुत कम जगह है जैसे ऐसा हो रहा है कि हम रिवर वाटर को हम यूज कर रहे हैं. मैक्सिमम जो भी आपका रिजर्वायर्स है उसको स्टोर कर रहे हैं हम. रिजर्वायर वाटर को स्टोर करके, सॉरी आपका जो फ्लोइंग वाटर है उसको स्टोर करके रिजर्वायर्स के थ्रू हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते हैं, वहां से ट्रीट करते हैं. देन इट इज कमिंग टू आवर हाउसेस or our locality. Okay, many of the public are also dependent on the groundwater. That data also I'm having. Just go through this, the sources of a drink water and the how much is there in percentage it is given.
in this diagram. So you can just go with this diagram and you can see the tap water from treated source is like a 62%. यानी आज की डेट में भी हमारे घरों तक के या हमारे इंडिया में सिर्फ 62% जो वेस्ट वाटर है वो ट्रीटेड वेस्ट वाटर हमारे यहाँ पे आ रहा है. इट इज नॉट 100%. हम सभी घरों को हम प्रोवाइड नहीं कर पाए. इट इज ओनली 62% व्हेन वी आर एट द एरा ऑफ 2020. नाउ let us talk about this tap water from untreated sources. आपके टैप वाटर में पानी तो आ रहा है, लेकिन टैप में पानी तो आ रहा है, बट वो देखिए आपका अनट्रीटेड है. कितना परसेंट अनट्रीटेड है? If you see this 100%, तो 62% आपका ट्रीटेड है और 8.6 आपका नॉन ट्रीटेड है, यानी अनट्रीटेड है. ओके, दैट इज ऑल्सो ह्यूज अमाउंट. देन नेक्स्ट इज कवर्ड वेल. कवर्ड वेल यानी कि पूरा इंजीनियरिंग स्किल्स के थ्रू इसको हम लोग कवर करके रखते हैं. सो दैट विल कम अंडर दिस. कवर्ड वेल इज 1.2%. नाउ अनकवर्ड वेल जो ओपन ही रह जाते हैं, मतलब बहुत से पोल्यूटेंट्स आके वहां पे सेटल होने के फुल चांसेस है, यानी कि वाटर कंटामिनेट होने के फुल चांसेस है. ऐसे कितने परसेंटेज हम वाटर यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इट 4.5%. नाउ we are also dependent on the hand pumps. In mostly it is in the rural area which can be seen, and that is 11.8% of water we are using from hand pumps. Now tube well and boreholes these are the new concept in the terms of this is not happening in last 10 years only. This is happening from last 2 decades. So now the utilization is increases, and many of us they are using is a boreholes or as well as tube wells. In many of the houses you can see instead of your covered and uncovered wells, you will get a tube wells or a bore wells. So in last video I have shown the scarcity in the Chennai, what is happening when we are as well as we have seen for a Delhi case as well, how the water get excavated. We are using 25% every year. Whatever is precipitating, we are using of 25%. So you can imagine there is a huge scarcity of water nowadays. So water table is going down and down. So that's an issue. So next is a river, canal, and a spring. So for a particular spring, you can see it is a 0.2% of water we are using it, and as well as same for a river or a canal, we are using a 0.2%. Now next is tank, pond, and lakes. So here it is a 0.4%, and other sources where the tankers are going and supplying water. Mostly it happens in slum areas. So it is happening, or we are distributing the water in a bottle like a Bisleri and all. So it is all around like a 1.7%. Okay, so this is the percentile distribution of water, drinking water, right? So one more image I am having here is, you can see this is a total water, then it is a fresh water. Fresh water, you can see 25% of distribution glacier, 68.7 groundwater, 30.1. The same in the data is same, which I have shown here is in different form. Okay, so let us come in water supply system. So all about this are your water resources. Okay, so we'll move further for next topic, that is a water supply system. The purpose of distribution system is to deliver a water to consumer with the appropriate quality and quantity and pressure. Now what happened, हमारा एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है. हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो रिक्वायर्ड है हमारा कंज्यूमर्स का या जो सोसाइटी का, हमने उतना डिजायर्ड वाटर तो ट्रीट कर दिया, बट द सिचुएशन इज नाउ कि हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा. नाउ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सो अगर ये सोचो, अगर हम लोगों ने मतलब इसको हम सब कलेक्ट करेंगे स्टोरेज टैंक में, देन विल सेंड टू अ राइजिंग टैंक, देयर विल यूज एज अ पंप, देन विल डिस्ट्रीब्यूट विद द ग्रेविटी. नाउ जब हम इसको ग्रेविटी से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर द लास्ट एंड कंज्यूमर. हमारी सिटी में जो हम अगर एक साइड में है तो हमारे दूसरे एंड में जो कंज्यूमर है, एंड यूजर है, तो वहां पे प्रॉपर तरीके से वाटर पहुंचना चाहिए. वाटर पहुंचना तो चाहिए, लेकिन अगेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट देयर शुड बी अप्रोप्रिएट क्वालिटी.
जो हम स्टैंडर्ड के साथ ट्रीटमेंट दे रहे हैं वही स्टैंडर्ड उसके यहाँ तक भी पहुंचना चाहिए, उसके घर तक पहुंचना चाहिए. That is also important. Quality, yes, it matters. Then quantity, yes, of course, it will be also matter, because if a person having a demand of 135 LPCD, then अगर हम उसको अगर 40 LPCD 40 लीटर्स अगर बेचते हैं एक दिन के लिए, so how he fulfills his requirement. So that is why quantity also required for there. Then yes, हमें हमारा जो भी वाटर है हमारे एंड यूजर तक हमें भेजना है, and we are sending with the gravity, so again you will require a pressure. तो आपको अगर हेड प्रेशर नहीं मिलेगा तो आपको वाटर वहां तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. So yes, so these three aspects are very important: quality, quantity and pressure. हमें ये हमेशा हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा. Now, distribution system is used to describe a collective, the facility used to supply water from its sources to a point of usage. I repeat, distribution system is used to describe collectively. क्या क्या इसमें आ जाएगा, इसमें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इकट्ठा करके. कौन कौन से? फैसिलिटी यूज्ड टू सप्लाई वाटर फ्रॉम इट्स सोर्स टू द पॉइंट ऑफ यूजेज, जहां पे आपका वाटर हमने ट्रीट किया और आपका जो एंड यूजर है वहां तक के जितने भी आपकी एक्टिविटी आ जाएगी, इसमें कलेक्टिवली जितने भी आ जाएगी वो सारा का सारा आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट होगा. नाउ, water quality should not be deteriorated in the distribution pipe. There may be a chance कि आपका 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, आपका वाटर जो है 1 पॉइंट से एक पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल कर रहा है. So there may be high chances of a contamination due to the uses of pipe, due to the maintenance of the pipe. अगर उसमें अगर हमने मेंटेनेंस नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ चोक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका डेब्रीज वगैरह के कारण चोक हो सकता है, या आपके गार्बेज के कारण चोक हो सकता है, या any other things maybe which can be entrapped your water and which will be deteriorate your quality of the water as well as the quantity of the water, and as well as it will affect the pressure as well. So हमें थोड़ा सा ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जो भी हमारा वाटर जा रहा है वो पास ऑन हो रहा है कंज्यूमर तक के, so it will not be deteriorated due to the pipes and all, or you can say appurtenance also, you can use that word. It should be capable of supplying water at all the intended place with a sufficient pressure head. Yes, of course, बार बार ये पॉइंट आएगा सामने कि प्रेशर हेड आपका मेंटेन हमें करना ही चाहिए. Now next, it should be capable of supplying the requisite amount of water during a firefighting. Yes, of course, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा 135 LPCD वाटर डिमांड है, बट व्हाट अबाउट द अदर एक्टिविटीज, लाइक जैसे आपका कहीं आग लग गई है तो उसको भी वाटर का रिक्वायरमेंट है, वो वाटर कहाँ से लेना है, तो वो भी एडुकेसी आपकी पास में होना चाहिए, या आपका जो भी फायर स्टेशन है वहां तक के आपका सफिशिएंट अमाउंट में वाटर भी पहुंचना चाहिए. तो हमें वो ये पॉइंट को भी हमेशा ध्यान में रखना होगा कि फायर फाइटिंग के लिए जितना वाटर डिमांड लगेगा वो भी हमें इसमें इंक्लूड करना है. नेक्स्ट इज द लेआउट शुड बी सच दैट नो कंज्यूमर वुड बी विदाउट वाटर सप्लाई. हमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि हमारा कोई भी कंज्यूमर जो है वो बगैर पानी के ना रहे ड्यूरिंग द रिपेयर ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सिस्टम. एंड दिस में ऑलवेज हैपन लाइक कि कई बार आपने नोटिस भी आपको आया होगा या आपने बचपन से देखा होगा कि बोलते हैं कि आज 1 दिन पानी नहीं आएगा, 2 दिन पानी नहीं आएगा, 3 दिन पानी नहीं आएगा, आप अपना पानी स्टोर करके रखो. Why they are saying or why they are giving notices like this? Because what happened कि ये जो आप हमारा जो पाइप सिस्टम है इसका मेंटेनेंस भी उतना ही रिक्वायर्ड है. अगर हमने इसको मेंटेन नहीं किया तो आपका जो भी 3 हमें प्रॉपर्टी चाहिए, जो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्रेशर चाहिए, वो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे. So yes, that is very essential that कि जब भी आपका रिपेयर होगा, कोई भी आपका मेंटेनेंस वाला वर्क होगा, उस केस में भी आपका पानी पहुंचना चाहिए, अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन आपका होना चाहिए. Okay, then all the distribution pipes should be preferably laid 1 meter away or above the sewer line. I repeat, all the distribution pipes should be preferably laid 1 meter away or above the sewer line. देखो, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हाउस होल्ड में 2 पाइप कनेक्टेड होते हैं. वन इज
when water is entering, and another pipe is when your drain water or your sewage water is getting uh, uh, that outlet will be connected to your sewer line. ठीक है, तो दो हमेशा कनेक्शन हमारे रहते हैं. हमें एक बात का ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों पाइप्स हैं, आपका ड्रेनेज पाइप एज वेल एज आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, ये दोनों ऐसे मतलब क्लोजली पैक्ड नहीं होना चाहिए, एकदम चिपक चिपक के नहीं रहना चाहिए. इट शुड हैव अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर? बिकॉज अगर कुछ कंटैमिनेशन सीवर के कारण आपके मेन पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाना चाहिए. नो, अगर मान लो अगर कुछ लीकेज होगा आपके सीवर लाइन में, and also if there any pores are there, if any holes are there in your distribution pipe, then there may be a high chance that कि आपका जो भी आपका सीवेज का वेस्ट वाटर है वो आपके इस डिस्ट्रीब्यूटेड पाइप के साथ में, वाटर के साथ में, ट्रीटेड वाटर के साथ में मिक्स हो सकता है, which can be contaminated your drinking water. If you consume this drinking water, then there is a high chance of diarrhea and cholera, एंड आपका सीवियर हेल्थ इफेक्ट भी हो सकता है उसके कारण. सो दैट इज व्हाई हमें उस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज ऑलवेज सीवर लाइन कंटेन दिस फीकल कोलिफॉर्म्स, एंड जिसके कारण आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं. सो हमें ये सब बातों का भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी पाइप्स है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप एज वेल एज सीवर पाइप, आपको पास पास में नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 1 मीटर डिस्टेंस पे होना ही चाहिए. Now it should be fairly watertight as to keep losses due to leakage to the minimum. Yes, of course, हमें अपने सिस्टम को इतना सिक्योर कर लेना चाहिए, अपने जो पाइप फिक्सेशन वगैरह जब होगा वो इतना सही होना चाहिए, इतना साउंड होना चाहिए कि आपका वो कंप्लीटली वाटर टाइट होना चाहिए. देयर विल बी नो वाटर लीकेजेस. अगर ये वाटर लीकेजेस अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर बढ़ते आएगा, तो सपोज करो कि अगर 1 मिनट में अगर आपका एक वाटर ड्रॉप हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ड्रॉप इन 1 मिनट, देन यू कैन इमेजिन कि आपका 60 मिनट में कितने ड्रॉप हो जाएंगे? 60 ड्रॉप्स हो जाएंगे. 60 ड्रॉप भी अगर मैं बोलूं तो नियर अबाउट, अगर हम ये मान के भी चले, लेट अस से कि आपका 25 ml भी कलेक्ट होता है आपके 1 घंटे में. सो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 24 कीजिए, 25 मल्टीप्लाई बाय 24, ओके, देन उसको आप नंबर ऑफ डेज में कर लीजिए. अगर मान लो अगर अपना, आई विल गिव यू कैलकुलेशन लाइक इफ आई से, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, 25 ml of water in 25 ml in a water in hour, multiply by 24, it will be a 600 around, and again it will multiply by 365, so it will be 1,600,000, like 2,19,000. okay, so अगर मैं इसको लीटर्स में भी कन्वर्ट करता हूँ तो यू कैन सी 219 लीटर्स. अगर हमने ये 219 लीटर्स में हमने ध्यान नहीं दिया, नाउ देयर इज अ हाई चांस कि हमारा जो भी सराउंडेड वाटर है उसके साथ में सराउंडेड सॉइल है, तो वहां पे वो पानी जो रहेगा, आपका जो वाटर है वो हमेशा सीप होता रहेगा, एंड समटाइम्स मे बी चांसेस है कि आपका जो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है वहां पे वो भी काफी डिस्टर्ब हो जाएगा. सो इफ इट इज प्रोलॉन्ग फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो इट मे डिटोरिएट योर सॉइल प्रॉपर्टी एज वेल. ओके, वो मार्शी लैंड में भी उसे कन्वर्ट कर सकता है कि काफी लंबे टाइम के लिए अगर हुआ तो. सो आई एम जस्ट टेकिंग अ 20 एग्जांपल ऑफ अ 25 ml. नाउ इफ यू सी कि हम इतना मिलियन लीटर्स में हम जब वाटर सेंड करते हैं, तो मतलब अगर थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो क्या चांसेस होने के चांसेस हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पाइप सिस्टम. ओके, सो now we'll see the layouts of a distribution system. हम जैसे हमारा जो भी सिटी पे डिजाइन होता है तो वो एक पर्टिकुलर लेआउट में डिजाइन होता है. अब जैसे हम अगर बात करते हैं पालघर की, तो पालघर जो है ये डिजाइंड सिटी नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट द न्यू मुंबई, यस इट इज अ डिजाइन सिटी. इफ यू टॉक अबाउट द रायपुर, yes it is a design city. If you talk about a new Raipur, a new Nagpur,
and yes, it is a design city. Design city कभी भी आपका या तो ग्रिड आयरन सिस्टम में रहेगा, रिंग सिस्टम में रहेगा, या रेडियल सिस्टम में रहेगा. ओके, सो मतलब कोई भी चीज अच्छे तरीके से पहुंच जानी चाहिए, अच्छे तरीके से सर्विस मिलना चाहिए, ये उसका मेन मोटो है. ओके, सो लाइक पालघर या नालासोपारा या विरार या वसई या बोईसर, ये भी अगर मैं आसपास के एरिया की बात करता हूँ, सो एवरीथिंग कम्स अंडर दिस डेड एंड सिस्टम. तो ऐसे विल सी the distribution pipes are generally laid below the road pavement, and as such their layout generally follow the layouts of the road. कहने की बात क्या है कि किस पे डिपेंड कर रहा है आपका जो लेआउट प्लान है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है आपके रोड्स के ऊपर में. नॉर्मली क्या होता है, आप देखना रोड के आजू बाजू में ही ये एक्सकवेट करते हैं और वहां पे हम लोग पाइप्स को ले डाउन करते हैं. सो इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द रोड सिस्टम. रोड सिस्टम यानी क्या? रोड सिस्टम यानी आपका अर्बनाइजेशन प्लानिंग की बात कर रहे हैं. सो there are in a general 4 different types of pipe networks, any one of which either singly or in combination can be used for a places, or you can say for many places. So what are the types of distribution system? So there are 4 types of distribution system, like dead end system, radial system, grid iron system, and ring system. Now if you talk about a dead end system, तो जैसा पालघर है, तो पालघर में देखो आप कोई भी गली में घुस जाओगे तो थोड़ी देर के बाद देखोगे वो क्लोज, वो गली ही बंद हो जाएगी. अरे गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हम कोई गली में घुसते हैं तो थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा हम 100 मीटर वॉक करेंगे तो आपको वो गली बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, वो एंड है, मतलब डेड एंड है वो. ओके, जस्ट लाइक दिस. ये सपोज करो कि ये मेन लाइन है आपकी या मेन रोड है आपका, देन आपका ये छोटा सा एक एलए है, ये आपका एक एलए है, ये आपका एलए है, another one, this another one, another one. So these are the different LAs. Okay, तो LAs का कहने का मतलब ये छोटी लाइन, छोटी रोड, और छोटी रोड के ही मतलब जो भी आपका रोड है उसके बाजू में हम ड्रेनेज पाइप या ड्रेनेज पाइप बोलो या आपका डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है, उसको हम लोग ले डाउन करते हैं. आप देखिए ये आपका मेन लाइन है, ये आपका मेन लाइन है, ये उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन दिया हुआ है. ओके, नाउ यू कैन सी ये इतना ले डाउन करने के बाद में आप देखिए यहाँ डेड एंड आ गया. अब यहाँ से 2 ब्रांचेस में ये डिवाइड हो गया. These are the branches. Let us go with this first the nomenclature. SM means submains, B means branches, SC means service connections, and CV is cut off wall. आप देखिए ये आपका मेन लाइन है, ठीक है, ये आपका कट ऑफ वॉल है जो आपके इस एक एरिया को वाटर प्रोवाइड करेगा. ओके, नाउ यहाँ पे आने के बाद देखिए इसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. One is this branches is divided in 3 branches. This branches this submain branch will this submain will be divided in 3 branches. Like कौन सा? एक ये 1 हो गया, और ये दूसरा हो गया, ये हो गया तीसरा. Now this is further you can see service connections are provided. Service connection मतलब यहाँ पे लोकेलिटी है या यहाँ पे आपका हाउसेज है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कनेक्शन दिया गया है. बट आप देखिए ये इसके बाद में कहीं कोई जा नहीं रहा है. दिस इज योर डेड एंड. यहाँ ये डेड एंड है, इसके बाद कुछ नहीं है. दिस इज योर डेड एंड, इसके बाद कुछ नहीं है. यहाँ पे आपका सब मेन लाइन है, देन सब मेन लाइन है, फिर ब्रांच लाइन है, फिर आप देखिए जहाँ भी एससी करके आ रहा है सर्विस कनेक्शन, बस वहां पे वो खत्म हो जा रहा है. सो डेड एंड मतलब इसका कोई क्या बोलेंगे हम, फिक्स नहीं है कि इसका एरिया कहाँ तक जाएगा और क्या होगा. इसका जैसे एरिया का एक्सपेंशन होता है ये उसे वैसा डेड एंड आपका वर्कआउट करता है. नाउ डेड एंड सिस्टम, the name itself defining that it contains a dead end in the pipe system. So the water does not flow continuously in the end, flow in the dead end system. In this system, the whole pipe network is divided into several sub networks. आपके एक मेन पाइप को हम different सब नेटवर्क्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं. Those are namely main line, ये हमने देखा है. This is your
this is your main line, then this is a main line, then this is a branch line, and now yes, this is a service connection. Now one main line is laid through the center of the city or area. Submains are laid on both sides of the main lines, and then submain divided into branch line from which service connection are given. At every state point of a submain line, a cutoff wall is provided to regulate the flow during a repair and work, etc. अब सपोज करो कि अगर हमने यहाँ पे कट ऑफ वॉल नहीं दिया, अगर हमको यहाँ पे कुछ सर्विस मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग का कुछ काम रहेगा, अगर हमने यहाँ पे अगर मेन वॉल दे दिया और यहाँ पे हमने अगर ब्लॉक कर दिया, व्हाट विल हैपन कि ये जो डिफरेंट लोकेलिटी है यहाँ पे भी आपको वाटर का इशू आएगा. सो इट्स बेटर कि यहाँ आपका जो सब मेन है, सब मेन में हम कट ऑफ वॉल लगा देंगे. अगर इसमें यहाँ पे हमने इसको वाटर को रोक लिया, बट इट विल नॉट अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द सिटी, ये दूसरे पार्ट्स को कोई हार्म नहीं होगा, वाटर यहाँ नहीं पहुंचेगा लेकिन ये बाकी लोकेलिटीज में आराम से वाटर पहुंचेगा. सो दिस इज द यूज ऑफ this cutoff wall. Okay, now overall this network diagram will look like a tree shape. जैसे आपका ट्री वर्टिकल बढ़ता है लेकिन उसके ब्रांचेस बहुत कहीं से भी कुछ भी निकल जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे है आपका मेन लाइन आपका अवेलेबल है, लेकिन आपका जो सब मेन लाइन है वो जैसा जैसा आपका एरिया एक्सपांशन होगा, जैसे जैसे सर्विस कनेक्शन मतलब सर्विस कनेक्शन कब देंगे, जैसे जैसे आपकी लोकेलिटी बढ़ेगी, आपका एरिया बढ़ेगा, तब आपका सब मेन एज वेल एज सर्विस कनेक्शन या ब्रांच आपका एक्सपैंड होते चलेगा. सो यस, इट इज लाइक अ ट्री शेप. सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ ट्री सिस्टम. दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज यूज्ड मोस्टली फॉर द ओल्डन सिटीज which are built in a irregular manner without any planning. Nowadays this system is not preferable. हम आज की डेट में ये प्रेफर नहीं करते हैं. Nowadays आपका अगर अनप्लान्ड भी है तो उसे हम धीरे धीरे प्लान्ड इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. लॉट ऑफ मनी इज सेंडिंग यूटिलाइजिंग फॉर दीज प्रोजेक्ट्स. नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस डेड एंड पाइप इन दिस नेटवर्क? कैन बी लेड इजीली, बहुत आसानी से, बहुत टेक्निकल चीजें उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, आसानी से हो जाता है. द प्रेशर इन एंड डिस्चार्ज इन ईच पाइप कैन बी डिटरमाइंड वेरी इजीली एंड एक्यूरेटली विच मेक अ डिजाइन कैलकुलेशन वेरी सिंपल. आपको प्रेशर हेड और डिस्चार्ज को बहुत ऐसा तामझाम करने का जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से मतलब आपका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है. The diameter of a pipes of a main, sub-main and a branches can be designed based on the required demand of population. वहाँ का जो भी जितने भी लोकेलिटी होगा, जितने लोग हैं वहाँ पॉपुलेशन है, उसके बेसिस में हम उसका डिमांड को कैलकुलेट करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट डिमांड आपका जो पाइप वगैरह है उसके डायमेंशंस को हम लोग पब्लिसाइज करेंगे, हम उसे डिजाइन करेंगे. देन डेड एंड सिस्टम रिक्वायर अ लेस नंबर ऑफ कट ऑफ वॉल्स. तो यहाँ पे भी आपका कट ऑफ वॉल लेस नंबर में यूज होगा एज कंपेयर टू अदर सिस्टम्स. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस? द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड इज वेरी लेस एट अ रिमोट पार्ट. ऐसा बहुत बार चांसेस हैं क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण, और अगर उसको एलिवेशन प्रॉपर हेड नहीं मिला तो यस इट इज पॉसिबल कि वहां पे प्रेशर आने का चांसेस कम है. Because of dead end water's stagnation takes place which result in a deposition of a sediment. This is possible क्योंकि dead end है, उसके बाद में कहीं वाटर आगे बढ़ नहीं रहा है, तो क्या होगा, अगर पानी पीछे से भी कुछ आ रहा होगा तो वो आगे क्या होगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. So which result in a deposition of the sediments. अगर वाटर में कुछ sediment particles रह गए हैं ट्रीटमेंट होने के बाद भी, तो भी वो क्या हो जाएगा, वहां पे सेटल होना शुरू करेगा. To remove these sediments, more number of score walls are to be provided at the dead end which increases the economy. आपको अगर ये sediments को remove करना है then you have to provide a scoring walls. अगर हम scoring walls provide करते गए तो ये आपकी economy को और बढ़ा देगा. Okay. If there is any damage occurs in a branch line, the whole portion should be stopped to repair that which create the discomfort to the other users in the submain lines. अब जैसे मैं डायग्राम में अगर बताऊं, अगर ये ब्रांच में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इस ब्रांच की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी क्लोज दिस कट ऑफ वॉल. अगर आपने ये एक कट ऑफ वॉल क्लोज कर दिया, हमें काम करना था ये ब्रांच ले, नाउ यू कैन सी
ये ब्रांच में भी आपका वाटर नहीं आएगा और ये ब्रांच में भी आपका वाटर नहीं आएगा। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो कट ऑफ वॉल है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे सो अगेन इट विल बी like a problem to our economy. So dead end system require less number of cut off walls. So हमें मतलब बढ़ाने चाहिए हमारे कट ऑफ वॉल्स को हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने के लिए, राइट? So this is all about the dead end system. Now next is grid iron water distribution system. Now what the system says grid iron system also contain main lines. जैसे हमारा dead end में था वैसे ही आपका एक मेन लाइन भी है, सब मेन लाइन भी है, ब्रांच लाइन भी है, बट देयर इज अ डिफरेंस. बट इन दिस सिस्टम डेड एंड्स आर एलिमिनेटेड बाय इंटरकनेक्टिंग ऑल द लाइंस. हम यहाँ पे जैसे डेड एंड में क्या था, कनेक्टेड नहीं था, लेकिन हमने इसमें क्या किया है, सेम है, मेन लाइन है, सब मेन लाइन है, ब्रांचेस है, लेकिन हमने क्या किया है, हर एक को इंटरलिंक कर दिया एक दूसरे के साथ में. हेंस द वाटर फ्लो कंटिन्यूअसली इन दिस सिस्टम विदाउट स्टैग्नेटिंग. अब देखिए ऊपर में जो प्रॉब्लम था कि वाटर स्टैग्नेंट हो जाता था, रुक जा रहा था, अभी क्या हो गया, सब लिंक हो चुके हैं एक दूसरे के साथ में, तो आपका वाटर रुकने का सवाल नहीं आता, वो कंटिन्यूअस फ्लो में आ जाएगा. दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज द इंटरलेस्ड सिस्टम और रेटिकुलेशन सिस्टम. इट इज मोर सुटेबल फॉर वेल प्लान्ड सिटी. आपका जो भी वेल प्लान्ड सिटी है ये उसके लिए ज्यादा बेटर है. नाउ यू कैन सी द डायग्राम वेयर SM स्टैंड फॉर सब मेन, B फॉर ब्रांच एंड कट ऑफ, C we call for cutoff. Okay, now here you can see this is a main line और ये main line है, और उसमें बाद में आप देखिए this black spot shows that this is a cutoff wall. Then SM stand for your sub main. तो ये देखिए main line के साथ में आपका sub main भी connected है. Now sub main lines के बाद भी आप देखिए आपका branches यहाँ पे देखेगा, लेकिन branches में भी आप देखोगे कि आपका जो कट ऑफ वॉल है वो भी इंस्टॉल किया गया है. नो यू कैन सी दिस इज आल्सो अ कट ऑफ वॉल. अगर मान लो ये ब्रांच में अगर प्रॉब्लम है तो इसको क्लोज करने का जरूरत नहीं है, यही इसको क्लोज करोगे तो यहाँ पे भी वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड यहाँ पे भी वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा. यस, अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम आ रहा है इस पूरे एरिया में, देन यू हैव टू use this cutoff wall, close this wall, और आपका इस पर्टिकुलर पूरे एरिया का जो भी आपको काम करना है, मेंटेनेंस करना है, रिपेयरिंग करना है, तो वो आप कर सकते हो. वन मोर थिंग, अगर आपका रिपेयरिंग का काम अगर इस पर्टिकुलर SM यानी कि सब मेन में आता है तो भी आपको इस कट ऑफ वॉल को क्लोज करना पड़ेगा. इन दैट केस एज वेल यहाँ पे बाकी जगह पे प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं. So it is the mainline, sub-mainline branches also are using here, but the difference is कि वहाँ पे वो dead end था, कहीं connectivity नहीं था. यहाँ पे क्या है कि आप देखो सारे पाइप एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, कनेक्ट हो जा रहे हैं. So this is the beauty of this system, grid iron water system. Now what are the advantage of this? Advantages are like water will flow continuously without any dent and sediment deposit. मतलब water flow होता रहेगा, कहीं stagnant नहीं रहेगा, तो sedimentation का सवाल होता नहीं है. Then head loss is minimum in this case because of the interconnection of the pipes. अगर एक हेड से पाइप नहीं भी, एक हेड से अगर वाटर नहीं भी आ रहा होगा लेकिन दूसरे हेड से वाटर आएगा, तो मतलब वाटर का अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगा. So that is the best part of this. The discharge will meet the required discharge for the firefighting. Yes, of course. तो ये सिस्टम से भी हम मतलब हम हमारा जो फायर फाइटिंग का रिक्वायरमेंट है वो हम कभी भी कहीं से भी लोकेशन से हम ले सकते हैं. आपको सेपरेटली कहीं और भेजने का जैसे डेड एंड में है, डेड एंड में क्या करना पड़ेगा, आपको वाटर स्टेशन की तरफ में स्पेसिफिकली वाटर वहीं से कलेक्ट करके वहां पहुंचना पड़ेगा. बट यहाँ क्या होगा, ये सिचुएशन में आपका फायर फाइटिंग के पास में वाटर खत्म भी हो गया है तो भी दे कैन यूज दिस एरिया वाटर. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट. Then repair work can be easily done just by closing a cutoff wall in that line which do not affect the other users. Yes, as I have discussed just 2 minutes back only. Now disadvantage, because of the circulating flow from all directions, the pipe used in this system should be of a large diameter and a longer length. Yes,
अभी क्या है कि सब इधर उधर से वाटर आपका सर्कुलेट हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है. सो द पाइप यूज इन दिस सिस्टम शुड बी ऑफ लार्जर डायमीटर. आपका पाइप का जो डायमीटर है वो आपका साइज बड़ा होना चाहिए एंड उसका लेंथ भी आपका ज्यादा होना चाहिए. We cannot determine the accurate discharge velocity or a pressure in a particular pipe, so design in difficult. Yes, this is also a difficulty कि हम इसमें प्रॉपर एक डिस्चार्ज कहीं पे भी पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर सपोज करो कि मुझे इस पाइप का डिस्चार्ज पता करना है कि कितना है, नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दूसरे साइड से भी वाटर आ रहा है जिसको उसको अफेक्ट कर सकता है. सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस. Laying of pipe will be done by skilled workers which consume more cost. Yes, कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग दो लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर वो स्किल लेबर है या नॉन स्किल लेबर है. नॉन स्किल लेबर है तो हमको मतलब उसका जो वेजेस है उसको कम देना पड़ेगा, उसको जो कॉस्टिंग है वो कम लगेगी. और अगर हमारा स्किल लेबर्स है तो उसको यस ऑफ कोर्स, तो ऐसे स्किल लेबर्स को हमें कॉस्टिंग या उनका जो वेजेस है वो डेली वेजेस है वो ज्यादा देना पड़ेगा और हमारा कॉस्टिंग भी बढ़ सकता है उससे. कट ऑफ वॉल रिक्वायर्ड शुड बी मोर इन दिस सिस्टम. आप इसमें कट ऑफ वॉल को और भी ज्यादा, मतलब जैसे इसमें आपका एससी जो नहीं दिख रहा है, एससी यानी कि आपके कंज्यूमर्स जो हैं वो इसमें दिख नहीं रहे, तो वहां तक पानी पहुंचने के लिए आपको और वॉल को यूज करना पड़ेगा. देयर मे बी अ चांसेस. नेक्स्ट इज रिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Ring system can also be called as a circular system in which the main pipeline is provided around the city or area, that is periphery. From this main line, the branch line are projected perpendicularly and they are also connected with each other. So every street of the distributed area will get enough water for a town with well-planned street and roads. Circular systems are more suitable than others. So you can see this is your ring water distribution system. Why we are saying ring? क्योंकि आप इसका पेरिफेरी, ये आपका मेन लाइन अगर है, this is your main line, then you can see these dark lines are like a rings. ये एक close ring बना रहा है. You can see this is making a close ring. अब ये ध्यान में रखिए कि इस मेन पाइप में हमेशा आपका वाटर अवेलेबल रहेगा. नाउ ये मेन वाटर से आपका जो वाटर है सब मेन में आराम से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. दिस कैन बी इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी सब लाइन्स एंड द बेस्ट पार्ट इज एवरीथिंग, ऑल पाइप्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर एवरी लोकेलिटी. ठीक है, द बेस्ट पार्ट अगर हम यहाँ देखें, इस लोकेलिटी की बात करते हैं तो आप देखिए इसके सारे सब मेन जो है वो सब कनेक्टेड है एक दूसरे को. यहाँ पे भी अगर मैं इतनी ही लोकेलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे भी सब मेन जो है वो एक दूसरे को कनेक्टेड है. सेम इज हियर एज वेल. Okay, so what are the advantage of this? Again the same advantage, no stagnation of water, क्योंकि water आपका continuous flow में है. Repair work can be done without affecting a large network. आपको ऐसे कट ऑफ वॉल बहुत जगह हमने यूज किया है, तो आपका जो लार्जर एरिया है उसको विदाउट अफेक्टिंग हम स्मॉल एरिया में से रिपेयर कर सकते हैं. मतलब वाटर हमें रोकने की जरूरत नहीं है किसी का. A large quantity of water is available for firefighting. Yes, of course, क्योंकि every locality आपको मिल रहा है. ये जो रिंग है आपका सिटी के पेरिफेरी में है या उस लोकेलिटी के पेरिफेरी में है. So that is the best part कि आपको वाटर हमेशा अवेलेबल होता रहेगा वहां पे. Okay, give me a minute just. तो आपको हमेशा वाटर अवेलेबल रहेगा. No, it has some disadvantage as well. The disadvantage क्या है कि yes, longer length and a large diameter pipes are required. जैसे डेड एंड में क्या था कि मतलब जितना रिक्वायर्ड है हमें उतने जितना रिक्वायर्ड है, जहां तक हमें पानी मतलब वाटर पहुंचाना है या वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है, उतना ही आपको एरिया, उतना ही आपको लेंथ का रिक्वायर्ड है. लेकिन आप देखिए ये प्लांट है, प्लांट में क्या होगा, ये पूरे सिटी के पेरिफेरी में उसको मेन पाइप को लेके जाया जाएगा. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको पूरी सिटी को कवर करना है. पूरी सिटी को अगर आपको कवर करना है तो आपको मतलब आपका डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, आपका लेंथ बढ़ जा रहा है, तो जिसके कारण लॉन्गर लेंथ एंड लॉन्गर डायमीटर पाइप्स आर रिक्वायर्ड. लॉन्गर डायमीटर क्यों, हमें प्रेशर भी मेंटेन करना है. दैट्स व्हाई नाउ मोर नंबर ऑफ कट ऑफ वॉल्स आर आल्सो नेसेसरी. आपको मतलब ये रिक्वायर्ड रहेगा
मतलब हम देखो दोनों में यही आ रहा बार बार कि आपको कट ऑफ वॉल आपको ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगा। वो क्यों रहेगा? ताकि आपका जो कंज्यूमर है उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पड़ोसी के यहाँ लाइन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो यस, आपके यहाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो सोसाइटी का जो वो आपका जो कॉलोनी का है, आपके एक आदमी के घर पे काम करने के लिए वो पूरे कॉलोनी का वाटर को हमने ब्लॉक कर दिया, देन एवरीवन विल बी सफर। तो हमें कट ऑफ वॉल ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, मतलब ये इसका डिसएडवांटेज है। मेन क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ वॉल यूज करेंगे तो वो आपका कॉस्टिंग बढ़ाएगा, दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज। देन यस, यू रिक्वायर स्किल्ड वर्कर्स which will increase the cost, so that is a disadvantage of this. So next is a radial water distribution system. Now radial system is a quite opposite to the ring system. अब जैसे हम देख रहे थे रिंग में क्या पूरा पेरिफेरी में चल रहा था, लेकिन ये उसका उल्टा है। इसमें क्या होगा, in this system whole area is divided into small distribution districts or zones, and an individual distribution reservoir is provided for each distribution zone. The reservoir provided is generally of elevated type. From this reservoir the pipeline are led radially to the surrounded street. आप देखिए ये जो आपका है, ये हर एक रीजन में हमने क्या करना है, ESR प्रोवाइड करना है। ESR यानी एलिवेटेड रिजर्वायर सिस्टम बोलते हैं, ये हम प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे कॉलोनीज के बीच में आपका एक बड़ी सी टंकी भी प्रोवाइड किया जाता है जो काफी हाइट में, उसको बोलते हैं ESR, एलिवेटेड रिजर्वायर सिस्टम। तो वो क्या करता है कि वहां से बाई ग्रेविटी फिर बाद में आपके इंडिविजुअल हाउसेस की तरफ में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दैट इज अ रेडियल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, जैसे हमने देखा है ये आपका एक लोकेलिटी है, दिस इज योर अनदर लोकेलिटी, दिस इज योर अनदर लोकेलिटी एंड दिस इज द अनदर वन। तो आप देखिए एक लोकेलिटी में एक ESR प्रोवाइड किया गया और इसको बाई ग्रेविटी हमने क्या किया, इसको रेडियली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रेडियल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। All distribution reservoirs are connected with a main line which is passing through a center of the city. This type of system is suitable for areas with a radially designed roads. ठीक है, तो ये आपका मेन लाइन है। उसके बाद से आप देखिए इस मेन लाइन से हम ये ESR में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ से फिर आपको बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सो these are the main line. S stand for sub main line, B stand for branch line. ठीक है, तो ये ऐसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। So what are the advantages? Advantage ये है कि इसका no stagnation of water, as we have seen in the previous two as well. Then repair work can be done without affecting a large network, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा जो ESR है वो हमारा उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही है, तो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में हमारे ब्रांच सब मेन्स है, ब्रांचेस है, तो आपको जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम होगा वहीं पे जाके हमको उसे रिपेयर करना है, बाकी को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट। देन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर फायर फाइटिंग इज ऑफ कोर्स। आप देखो आप प्रीवियस टू में भी सेम ऐसे था कि आपके लार्ज अमाउंट में वाटर अवेलेबल है। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज? The disadvantage is like a longer length and larger diameter pipes are required, as we have seen in previous as well. More number of cut-off walls are necessary, as we have seen in previous as well. Then skilled workers are necessary while laying pipes, then as we have seen in previous as well. Now question may comes, distinguish between the dead end and with your ring type. The question may ask like this, distinguish between dead end with another. मतलब आपके ये चार में से एक तो आपका कॉमन रहेगा, दैट इज योर डेड एंड, और बाकी जो तीन आपके रहेंगे उसमें उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है। देयर इज अ वेरी लेस चांस टू आस्क डिस्टिंग्विश बिटवीन योर दिस थ्री टाइप्स। आपका रेडियल सिस्टम ग्रिड सिस्टम के बीच में मतलब डिस्टिंग्विश पूछना लिटिल बिट मतलब चांसेस कम होगा। सेम इज विद रिंग एंड ग्रिड एंड सेम इज विद रेडियल एंड रिंग। मतलब इनमें मतलब डिस्टिंग्विश पूछना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है चांसेस कम रहेगा। चांसेस मे बी लाइक दिस कि डेड एंड सिस्टम को बाकी के साथ आप कंपेयर करो, क्योंकि एडवांटेज डिसएडवांटेज ये तीनों में भी एक जैसे ही हैं। ओके, सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस है, बट आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज में सेम है। बट इफ यू कंपेयर विद द डेड एंड सिस्टम तो एवरीथिंग इज डिफरेंट with others. So question may ask like that.
Okay, so that is all about the today's lecture. So I hope you might be understand this topic. We have covered two topics today. Okay, so if anybody having any doubt, so you may ask me anytime. Okay, so